Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the last chapter in geography. The chapter is India, climate, vegetation, and wildlife. And in this chapter, we have discussed about the climate and uh, vegetation of our country. And now, today, we will discuss the wildlife. And in this discussion, we see that wildlife is closely associated with the forest. The wildlife cannot survive without forest. So both are closely related with each other, and we see that in our country there is a large variety of wildlife exist. We see that we have thousands of species of animals and a very large variety of different types of animals like reptiles. Reptiles are the animals वो क्रॉल जो क्रॉल करने वाले होते हैं और जिनके स्किन पे स्केल्स होते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं लाइक हमारा रेप्टाइल के एग्जांपल में क्या होगी क्रोकोडाइल स्नेक लिजर्ड दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ रेप्टाइल्स इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सारी वैरायटी एम्फीबियंस की भी पाई जाती है व्हाट इज दिस एम्फीबियंस एम्फीबियंस Amphibians are those who can survive both on land and in water. जैसे fish is not amphibian. Fish क्या है वो सिर्फ water में रह सकती है. They cannot survive on land. And frogs are amphibians because they can survive on both on land as well as in water. तो इस तरह के amphibians के भी बहुत सारे जो variety हैं वो हमारे country में है. Other than this, mammals are also there, variety of mammals. Mammals क्या होते हैं जैसे जो अपने younger one को produce करते हैं जैसे we the human beings we are also mammal. तो अगर हम reproduction में देखें कैसे नया जो नए नए आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं नए बच्चे कैसे आ रहे हैं रेप्टाइल्स में क्या होते हैं एग्स होते हैं एम्फीबियंस भी एग्स प्रोड्यूस करते हैं बट मैमल्स क्या होते हैं मैमल्स में यंगर वन प्रोड्यूस होते हैं है ना तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मैमल तो मैमल्स की भी बहुत सारी वैरायटी है जैसे हमारे टाइगर है लायन है एलिफेंट है हॉर्स है डियर है दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल so you must remember some examples like reptiles का आपको you must know snake crocodile lizard okay and then amphibians में हमारे frog mammals में human being here don't remember human being you should remember lion tiger deer horse okay so these are different types of species of animals and not only animals birds different species of birds are also there in our country then insects are so many variety of insects is existing in our country worms are also there so these are diversity of wildlife which is existing in our country and we all know our national animal is tiger है ना tiger is a national animal and we see that the tiger is found in various parts of the country and in this regard gir forest is very important gir forest is in gujarat है ना तो गिर फॉरेस्ट कहाँ है गिर फॉरेस्ट गुजरात में है and this गिर फॉरेस्ट इज होम टू एशियाटिक लायंस जो एशियाटिक लायंस हैं वो यहाँ पर रहते हैं
And we see that other than this lion and tiger, elephants and one-horned rhinoceros are also found in our country, and they are especially found in the forest of Assam. Rhinoceros जो है वन हॉर्न राइनोसरस, जिनको सिर्फ एक सिंगल हॉर्न होती है, वो राइनोसरस कहाँ मिलते हैं? हमें असम में मिलते हैं। बट एलिफेंट्स असम के अलावे भी और कई सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर एलिफेंट मिलते हैं, बट one of the most important part of the country where we find these elephants are in Kerala and Karnataka. In both these states, elephants are found. तो अगर हम देखें, गिर फॉरेस्ट is famous for Asiatic lion, then we will see that rhinoceros are found in the forest of Assam. Okay, and then we see elephants. Elephants are also found in the forest of Assam and Kerala and Karnataka. And we see that some other animals like camels and wild asses are also found. They are found in camels are found in Rajasthan, है ना? राजस्थान में desert है, और desert में camels they are very important mode of transport, है ना? In desert, तो camel जो है वो कहाँ मिलते हैं हमें? Camel राजस्थान में है, ओके। एंड राजस्थान में भी कहाँ पर? राजस्थान का जो डेजर्ट है, दैट इज थार डेजर्ट, है ना? एंड कैमल के साथ साथ एक और एनिमल है, वाइल्ड एस. दिस वाइल्ड एस इज फाउंड इन दे आर फाउंड इन रन ऑफ कच्छ. So this is important for you because these all are asked in different types of 1 mark questions. These can be asked, है ना? वाइल्ड एसेस कहाँ मिलते हैं? रन ऑफ कच्छ में, एंड कैमल डेजर्ट ऑफ राजस्थान. एंड देन वी सी कि इसके अलावे और भी है, जैसे वाइल्ड गोट है, स्नो लेपर्ड है, बेयर है. ये सब कहाँ मिलते हैं? ये हमें हिमालयन रीजन में मिलते हैं, क्योंकि स्नो लेपर्ड यू कैन अंडरस्टैंड बाई नेम ओनली कि स्नो लेपर्ड है. कहाँ मिलेगा वो? जहाँ पर स्नो है. तो स्नो कहाँ पर है? हमारे जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, वहाँ पर स्नो होता है. तो these leopards are found in snow leopards are found in the Himalayan region, and then wild goats and bears, bears are also found there. And besides, there are other animals also like monkey, wolf, jackal, nilgai, cheetal. We see all these animals in various parts of the country. Okay, and now we will see the about birds. We know our national bird is which is our national bird? Our national bird is peacock, and our country is very rich in bird life also. So many variety of birds are available in our country, and we see in our day-to-day life so many birds like parrots, pigeons, मैना, geese, bulbul, ducks. ये सब हमें देखने को मिलती हैं. These are various types of birds, है ना? And other than this, we see in our country bird sanctuaries are also there. बर्ड सैंक्चुरी क्या होते हैं? जो कि बर्ड्स के लिए ही बनाए जाते हैं, सैंक्चुरी है. दीज आर द प्रोटेक्टेड प्लेसेस, है ना? प्रोटेक्टेड क्यों बनाया जाता है? बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं, है ना? एनिमल्स की भी हंटिंग होती है, बर्ड्स की भी हंटिंग होती है. तो अगर हंटिंग करेंगे तो क्या होगा? फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, वो पूरी की पूरी स्पीसीज खत्म हो सकती है. और जब भी हम वी ऑल नो कि जो हमारा इकोसिस्टम है
उसमें क्या होता है कि हम सभी स्पीसीज जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर कोई भी एक स्पीसीज का एंड होता है, एग्जिट एक्सटिंक्ट हो जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है ना। तो हमें वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी पर्पज से बहुत सारे ये बनते हैं, जैसे कि हमारे कंट्री में नेशनल पार्क्स बनते हैं, बर्ड सैंक्चुरी बनते हैं। तो ये क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे खुद की लाइफ के लिए, है ना। तो बर्ड सेंचुरीज हो गए हमारे। बर्ड सेंचुरीज के अलावे नेशनल पार्क्स, these are for the protection of animals। then बायोस्फीयर भी होते हैं। So many efforts are done by the government in order to protect the wildlife, है ना। तो ये सारे होते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ नेशनल पार्क्स हैं जिनको इसीलिए इसी पर्पस से बनाया गया है ताकि ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ है इनको हम प्रोटेक्ट करके रख सकें। और हमारे कंट्री में तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारी वैरायटी है। और हमारे जो मेन एम है वो क्या है कि ये वैरायटी को हमको बचा के रखना है, मेंटेन करना है, हमें इस वैरायटी को लूज़ नहीं करना है ना। तो इसके अलावा हमारे यहाँ स्नैक्स के भी बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं, जैसे कि कोबरा और क्रेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है स्नैक के वैरायटीज़ में। और ये वाइल्ड लाइफ को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो थ्रेट आ रही है वाइल्ड लाइफ को, वो कहाँ से थ्रेट आ रही है? एक तो हमने देखा कि हमारे यहाँ हंटिंग की प्रॉब्लम है ना, लोग हंटिंग करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या हुआ? जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं अपने यूज़ के लिए, लाइक बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, फॉर एनी पर्पस जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो व्हाट वी फाइंड कि जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो जो इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट होता है, तुरंत जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है? वो वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ का वो हैबिटेट होता है, दे लिव इन द फॉरेस्ट। एंड अगर कोई हमारे घर को तोड़ेगा तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होगी। तो उसी तरह से जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो उससे जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो बैडली अफेक्टेड होता है। तो हमारी वाइल्ड लाइफ को कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? एक तो हंटिंग हो रही है जिसके कारण नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ कम हो रहे हैं, दूसरी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिसके कारण वाइल्ड लाइफ जो है वो डेंजर में आ गया है। तो अब क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है, व्हाट इज़ द नीड? नीड इज़ टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ, आई टोल्ड यू कि हर कोई जो है इस इकोसिस्टम में एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में अगर किसी वाइल्ड लाइफ को थ्रेट आएगा तो कल आगे चल करके हमारे लिए भी वो थ्रेट बन जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे बर्ड सेंचुरीज बनाए गए, नेशनल पार्क्स बनाए गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए। ये सब कौन बनाता है? ये सब गवर्नमेंट बनाती है। क्यों बनाती है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ को क्यों प्रोटेक्ट करना है? ताकि हमारे जो डाइवर्सिटी है हमारे एनवायरनमेंट की वो मेंटेन रहे और हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स ना आए, हमारा एनवायरनमेंट चलता रहे अच्छे से, नेचुरली एवरीथिंग शुड गो इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये एफर्ट किया है। और इसके अलावे भी गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे काम किए हैं, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। व्हाई दिस प्रोजेक्ट टाइगर? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है कि इंडिया में, हमारे कंट्री में नंबर ऑफ टाइगर्स आर डिक्रीजिंग।
क्योंकि हमारे यहाँ हंटिंग जैसे पीछे पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो हंटिंग पे भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, पूरी तरह से बैंड है ना। अगर कोई हंटिंग करता है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका हंटिंग करने पर उनको तुरंत पनिश किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका यही पर्पस है कि जो भी टाइगर अब बचे हुए हैं कंट्री में उनको बचा के रखना। अब उनका नंबर कम नहीं होना चाहिए, है ना। नेचुरली अगर वो डेथ होती है तो वो अलग चीज़ है, बट उनका किसी तरह से हंटिंग नहीं होना चाहिए, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ह्यूमन की तरफ से नहीं होना चाहिए, है ना। इसी तरह से गवर्नमेंट ने और भी स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट एलिफेंट। दिस प्रोजेक्ट एलिफेंट इज ऑल्सो देयर टू प्रोटेक्ट द लाइफ्स ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट को बचाना है ना। एलिफेंट्स ये नहीं होने चाहिए, उनका नंबर कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट कर रही है। हंटिंग और पोचिंग, हंटिंग को ही पोचिंग भी कहते हैं, पोचिंग को भी इलीगल कर दिया गया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा रोक लगा है ना। एंड ये सारे एफर्ट्स तो गवर्नमेंट कर रही है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारे एफर्ट्स, दीज एफर्ट्स आर डन बाय गवर्नमेंट। सो जस्ट टेल मी, इज इट ओनली द responsibility of the government to protect the wildlife? No, it is not the only responsibility, it is not the responsibility of government only, है ना। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, हम सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को बचाएं। कैसे बचाएं? व्हाट वी कैन डू, we as a human being, what we can do to protect this wildlife। हम क्या कर सकते हैं? हम तो ये कहेंगे, हम तो बर्ड सेंचुरी नहीं बनवा सकते, हम तो किसी भी तरह से ये नहीं कर सकते हैं कि नेशनल पार्क बनवा दें, बायोस्फीयर रिजर्व बनवा दें, या हंटिंग को वो कर दें, बैन कर दें। वी कांट डू ऑल दीज थिंग्स। तो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज we can refuse to buy things which are made from parts of the bodies of animals, है ना। क्यों हंटिंग होती है? अगर ये सोचो कि एनिमल्स की हंटिंग क्यों होती है, बिकॉज उनके बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं उससे बहुत सारी यूजफुल चीज़ें बनती हैं, जैसे कि लेदर जो होता है, जो स्किन होते हैं एनिमल्स के, दैट स्किन इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर। फिर उसके लेदर के बहुत सारे कॉस्टली आइटम्स बनते हैं, बहुत ही जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लोग उसको बहुत डिमांड में होते हैं, इसलिए वो कॉस्टली होते हैं, है ना। तो अगर हम उसको खरीदना ही बंद कर दें तो क्या होगा? खरीदना अगर बंद कर देंगे तो फिर जो लोग सेल करने वाले हैं उनको लॉस होने लगेगा, और फिर मैन्युफैक्चरिंग भी कम होने लगेगा, क्योंकि भाई कोई खरीद ही नहीं रहा है तो हम बेचें कैसे? जब बिकेगा नहीं तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं मतलब कि हंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को नहीं खरीदें। ओके, हम रिफ्यूज करें, we should refuse to buy things which are made from different parts of the bodies of animals, है ना। जैसे उनके बोन से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उनके हॉर्न से बनता है, उनके फर से बनता है, उनके स्किन से बनता है, उनके फेदर से बनता है, और ऐसी चीज़ें बहुत डिमांड में होती हैं। ये हमारे एक तरह से रिचनेस का सिंबल होता है कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट वी मस्ट चेंज आवर एटीट्यूड। हमें ऐसी एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है, और हमें अपनी तरफ से इस तरह की चीज़ों को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें इसको रिफ्यूज़ करना चाहिए। एंड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ और फॉरेस्ट ट्रीज़ प्लांट करके भी, सैपलिंग्स प्लांट करके भी हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ की तरफ कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी सी कि हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, है ना, अभी हम लोग वी आर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ओनली। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में क्या होता है? वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो ये क्यों होता है?
क्यों वाइल्ड लाइफ वीक को ऑब्जर्व करने का क्या पर्पस होता है? पर्पस ये होता है कि लोगों के अंदर एक तरह का अवेयरनेस क्रिएट करना, मेक पीपल अवेयर of the importance of wildlife, make people aware of the threat the wildlife is facing, make people aware of what they can do in order to protect the wildlife. तो ये जो वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं ताकि लोगों को उसके लिए अवेयर बनाया जा सके और लोग जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके. दे शुड गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रिजर्विंग द वाइल्ड लाइफ, है ना? तो इस तरह से ये चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं एंड वी मस्ट डू फॉर दैट. एंड इन दिस रिगार्ड वन मोर थिंग, एक माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं. माइग्रेटरी क्या होता है? जैसे माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बिकॉज ऑफ सम अनफेवरेबल कंडीशन. कई बार होता है हम एक जगह छोड़ के दूसरी जगह आ जाते हैं. जैसे कई लोग होते हैं ना जो विलेज में रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है वहाँ पे, तो फिर वो विलेज से माइग्रेट होकर के कहाँ आ जाते हैं? अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, है ना? तो इसको हम माइग्रेशन कहते हैं. तो ऐसी बर्ड्स जो होती हैं, दे ऑल्सो माइग्रेट. एंड बर्ड्स क्यों माइग्रेट करती हैं? बर्ड्स के माइग्रेशन का क्या रीज़न होता है? हमने तो माइग्रेट किया लाइक एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए माइग्रेट करते हैं, बट बर्ड्स क्यों माइग्रेट करेंगी? बर्ड्स माइग्रेट करती हैं जैसे अगर वो जहाँ पर रह रही है वहाँ बहुत टेम्परेचर ठंडी हो गई, विंटर के समय में बहुत ज़्यादा एक्सेस ठंड हो गया, बर्फ होने लगी वहाँ पे, वो बिल्कुल वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते हैं. तो वैसे कंडीशन में वो क्या करते हैं? वहाँ से वो माइग्रेट कर जाते हैं और वो माइग्रेट करके वैसी जगह में आ जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है ना? तो ऐसे बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे बर्ड्स को हम लोग कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. जो कि माइग्रेट होकर के अपनी कंट्री दूसरी जगह पे पहुंचती है. और ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि इंडिया में माइग्रेट होकर के आती हैं. जैसे साइबेरिया जो हमारे ऊपर चाइना है ना? इंडिया का अगर मैप देखोगे तो इंडिया के वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इंडिया के ऊपर चाइना है, चाइना के ऊपर रसिया है, और रसिया का जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होती है. वो बिल्कुल पोल्स के पास वाला रीजन हो जाता है. तो वहाँ जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ से बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो इंडिया चले आते हैं माइग्रेट करके, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर उस समय सही रहता है. और वो हर विंटर सीजन में आते हैं, मतलब उनका एक बिल्कुल टाइम फिक्स होता है, वो उस समय आएंगे ही आएंगे, है ना? ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं लाइक फ्लैमिंगो है, लिटिल स्टिंट है, पेंटेल डक्स है, वो कि जो कि हमारी कंट्री में विंटर सीजन में आते हैं. ऐसे ही एक बहुत ही छोटी से स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड जो है वो लिटिल स्टेंट उसका नाम है. ठीक है? लिटिल स्टेंट जो है वो सबसे छोटी माइग्रेटरी बर्ड है जिसका वेट कितना होता है? 15 ग्राम्स. इट ओनली वेट्स 15 ग्राम्स. तो वो जो है वो कहाँ से इंडिया आती है? वो आर्कटिक रीजन से इंडिया आती है, पोलर रीजन जो हमारा है ना? तो इस तरह से वो करीब करीब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके इंडिया पहुंचती है? आर्कटिक रीजन से इंडिया पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस होता है? 8,000 किलोमीटर्स. 8,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस वो फ्लाई करके इंडिया पहुंचती है आर्कटिक रीजन से. कौन सी बर्ड? लिटिल स्टेंट, जो कि स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है. ओके, so this is all your chapter. We have completed this chapter, and with this chapter we have completed geography of this इस syllabus का हमारा geography का जो part है वो complete हो गया है. And now we will do history. In history we have to do some chapters which are left, and today we will discuss some questions of this chapter which are given in your textbook. Okay, so first of all we will see the MCQs which are given in your book. कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बुक में दिया है, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे. ओके, the world's highest rainfall
occurs in. पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? I told you the answer. Answer is Mawsynram. Mawsynram. Where is this Mawsynram? This is in मेघालय. ओके, नॉर्थ ईस्ट में ये हमारा मौसिनराम जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है. ओके, एंड वी सी वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स. दे आर फाउंड इन वाइल्ड गोट्स और स्नो लेपर्ड्स कहाँ मिलते हैं हमें? आई टोल्ड यू ना, इन हिमालयन रीजन. ओके, वाइल्ड गोट्स एंड wild goats and snow leopards, they are found in Himalayan region. And then during the southwest monsoon period, the moisture laden winds blow from, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना जिससे इंडिया में बारिश होती है, वो साउथ वेस्ट मानसून डायरेक्शन क्या था बताया था ना मैंने. दिस इज द डायरेक्शन. ये इंडिया में ऐसे पहुंचती है. ये कहाँ से किधर से फ्लो करती है? फ्रॉम इंडिया. ये लैंड है ना, ये इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है जो पेनिनसुलर है इंडिया, है ना. इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है. तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया में ऐसे यहाँ से एंटर करती है. ये कैसे आ रही है? फ्रॉम सी टू लैंड. किधर से हवा चलती है? द मॉइस्चर लेडन विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. It blows from sea to land. Okay, so this is your MCQ, and now we have some filling the blanks. In filling the blank section, the first question is hot and dry winds known as dash blow during the day in the summer. Summer में डे टाइम कौन सी वो उस विंड का क्या नाम होता है जो कि बहुत ही हॉट होती है और ड्राई होती है? यू नो द नेम. द नेम इज लू. गर्मी के दिनों में हॉट एंड ड्राई विंड जो बहती है दिन में, दैट इज कॉल्ड लू. देन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु receive a great amount of rainfall during the season of, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है और फिर वो पूरे इंडिया में बारिश करता है, एंड देन वो हिमालय के पहाड़ों से टकरा के इट स्टार्ट्स टू गोइंग बैक. जब वो वापस जाने लगता है तो वो आंध्रा और तमिलनाडु में बारिश करता है. एंड ये इस सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून. Okay, and then the third question in this filling the blanks is dash forest in Gujarat is home of dash. गुजरात में कौन सा फॉरेस्ट हमने डिस्कस किया था? इट वाज गिर फॉरेस्ट. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ, किसका होम है वो? एशियाटिक lions. Okay, so this is your filling the blanks and MCQ. Other than this, you have some questions also. There are 3 questions in all. In the old book you will find there are some other questions also, but in according to the new book you have to do only 3 questions. Other than this, there will be some extra questions which I give you in the snap work. So in your textbook there are 3 questions. The first is which winds bring rainfall in India? The southwest monsoon,
brings rainfall in India. The monsoon brings rainfall in India. Why is it so important? It is important for the purpose of agriculture, है ना? And not only this, it also binds the whole country together, the monsoon. And the second question is name the different seasons, the four seasons which is given in the chapter. All the names: the winter season, the summer season, the monsoon season, and the autumn, or the season of retreating monsoon. Okay, and then what is natural vegetation? Natural vegetation is the growth of grass, shrubs, and trees without any human interference. So these are the your exercise of this chapter. And now from tomorrow we will start history. Okay.